Good morning, children. Today I teach you a beautiful poem written by Ralph Waldo Emerson. The title of the poem is The Mountain and the Squirrel. This poem is very famous, and this poem is the part of your English textbook in different classes. In the different classes, you read the same poem. Now, before the discussion of the poem, I want to show you some of the pictures related to the poem. The mountain and the squirrel. You see the picture of mountain here. This is very pleasant. You know the children, you know the scenery of the nature. The scenery of the mountain is very pleasant, very charming, greenery, and often the people wish to visit the hillside, especially in the summer season. चिल्ड्रेन, आप पहाड़ और पर्वतों के बारे में बहुत अच्छा से जानते हो। पर्वत के बारे में, प्रकृति के बारे में काफ़ी कविता आप लोगों पढ़े होंगे। इस कविता में एक माउंटेन और एक स्क्वायरल के बारे में कहा गया है, लेकिन ये दो कैरेक्टर, एक स्क्वायरल एंड माउंटेन, केवल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि समाज में दो श्रेणी को बताता है। These two characters represent the two sections of the society. One is the rich, another is the poor. One is the king, other is the subject. One is the master and one is the servant. आप बच्चों, समाज में आप देखे होंगे इस तरह का दो श्रेणी के लोग हैं, लेकिन हर लोग, each and every element of the society, of the world, of the universe is similarly important. अगर घास नहीं होता तो कोई भी हार्बिवोर्स एनिमल्स जी नहीं सकता था। अगर वे नहीं होते तो कार्निवोरस एनिमल क्या खाता? कार्निवोरस नहीं होते तो ओमनिवोरस एनिमल्स क्या खाता? एक दूसरे के साथ ये इकोसिस्टम है। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। समाज में हम लोग देखते हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं, लेकिन कोई काम छोटा नहीं, कोई लोग छोटा नहीं। अगर मजदूर नहीं हो तो फैक्ट्री नहीं चल सकता, मालिक नहीं बन सकता, राजा नहीं होगा जब प्रजा नहीं होगा। जब तक प्रजा अपना काम नहीं करेंगे, अपना टैक्स नहीं देंगे, तब तक राजा अपना काम, अपना सही ढंग से देश को चला नहीं सकते। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट है, निर्भरशील है, और इक्वली वी आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। दिस द पोएम इज टेलिंग अस। This poem is not only that one is the non-living thing mountain and another is the living organism like squirrel. Now let us start the poem. The mountain and the squirrel had a quarrel. Children, देखो,
एक समय की बात है, दैट इज़ द इमेजिनरी स्टोरी. You know that most of the poems and the stories and the novels they are imaginary. काल्पनिक होता है, लेकिन उस काल्पनिक कैरेक्टर्स के अंदर से हम लोग बहुत कुछ रियलिटी में जान सकते हैं. इस पोएम में भी ऐसा है. एक माउंटेन और एक स्क्विरल में झगड़ा हुआ. क्या झगड़ा हुआ? एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग. मतलब क्या है? फार्मर मतलब you should know the meaning of the words, the important words. When you learn English and other subjects also, you should know the meaning of the words. That is very important. Farmer. Farmer means पहला व्यक्ति. दो व्यक्ति में जो पहला होते हैं उनको फार्मर कहते हैं. माउंटेन सबसे पहले, देन स्क्विरल. तो माउंटेन को फार्मर कहा गया है. लेटर, आप स्पेलिंग को देखो, LATTER. LE होता तो एक पत्र हो जाता है इसका मीनिंग, लेकिन LATTER माने बाद वाले. पहले वाला नहीं, बाद वाले. बाद में कौन है? स्क्विरल. तो फार्मर दैट मीन्स माउंटेन. माउंटेन कहता है स्क्विरल को, तुम एक तुच्छ छोटा घमंडी जीव. इस तरह से उसको एड्रेस करता है. स्क्विरल को, गिलहरी को कहता है तुम एक बेकार, घमंडी, अहंकारी, ऐसा करके एड्रेस करता है. स्क्विरल क्या कहती है? द स्क्विरल रिप्लाइड, You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together. You see that? And the thing, children, there is a rhyme scheme. Rhyme scheme that, about the rhyme scheme already I discussed in the previous video. You can revise them so that I tell in all my videos that you should remain with me in my channel and you should subscribe my channel. See that the two words of the last lines, squirrel, L sound, next line had a quarrel, that is L sound, L and L sound, so that there is a similarity between the two words, pronunciation of the last two words LL. So we can say the rhyming scheme is here AA. And after that you see that little prig, G sound, very big, G sound, G and G sound. Okay. So that there is a similarity between the pronunciation of prig and big, G and G. So we will put BB. First we write AA, then BB. The rhyme scheme of the poem is AABB. Is it clear to you now? बेचारी गिलहरी कहती है, हाँ ये बात तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है. यू आर डाउटलेस वेरी वीक. कोई संदेह नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं. आप तो बहुत बड़े हैं. जाहिर सी बात है, आप लोग माउंटेन देखे होंगे, पर्वत देखे होंगे, हिमालय जैसा पर्वत, बहुत सारा पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. पर्वत को देखकर स्क्विरल कहती है, हाँ आप तो निस्संदेह बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर मालूम होना चाहिए जे सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, ये सभी छोटे छोटे चीज़ लेकर मौसम बनता है, और ये सभी को एकत्रित करके एक एक मौसम, एक एक समय, ये सभी मिलकर एक साथ क्या होता है? टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्फीयर. एक वर्ष बनता है, एक साल बनता है, और ये सभी को लेकर फिर एक ये दुनिया बनती है. मतलब दुनिया में
केवल विंटर नहीं होता, केवल समर नहीं होता, केवल ऑटम नहीं होता, केवल स्प्रिंग नहीं होता। हर समय हर चीज़ का महत्व है। ये एक छोटी सी गिलहरी ने कहा। हम लोग जिन लोगों को इग्नोर करते हैं समाज में, आप देखे होंगे आपके सोसाइटी में, आपके कॉलोनी में, कोई एक चीज़ हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। छोटे आदमी का बात, कोई अनइम्पोर्टेंट आदमी आपके सामने कुछ कहे होंगे तो उस बात को हम लोग नहीं सुनते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हर फील्ड में होता है। जो इन्फीरियर है, सुपरियर, उनका बात सुनना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है, जूनियर का बात इतना इम्पोर्टेंट होता है जो सीनियर को बाद में रियलाइज़ होता है, नहीं, इसने सही बात को कहा। Like that, you see that in this poem the same thing happens. The squirrel, a small animal, एक छोटी सी गिलहरी, आप देखते ही होंगे गिलहरी कितना छोटा होता है। मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया। नेक्स्ट लाइन, you see that. And I think it no disgrace to occupy my place. छोटी सी गिलहरी कहती है, जे इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे लज्जा नहीं है, मुझे कोई अपमान बोध नहीं होता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स अपमानित महसूस करना, लज्जित होना। मुझे कोई लज्जा नहीं है। मैं एक छोटी सी गिलहरी हूँ, इसलिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। आफ्टर दैट यू सी द लाइन, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। जैसे कि मैं आपकी तरह बहुत बड़ा नहीं हूँ, आप भी मेरे तरह एक छोटा नहीं हो सकते हो। मतलब क्या है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत बड़े होंगे, बहुत धनी होंगे, हो सकता है बाय पोजीशन हो, बाय मनी हो, बाय पॉलिटिकल पावर हो, वो अगर बहुत बड़े हस्ती होंगे, लेकिन उनके पास कुछ मजबूरियाँ भी है। बड़े लोग ज़मीन पर नहीं उतर सकते हैं। ज़मीन पर रहने वाले व्यक्ति आकाश में जा सकते हैं, लेकिन आकाश में रहने वाला व्यक्ति ज़मीन पर उतर के वो काम नहीं कर सकता। ये मजबूरी है। ऐसा ही उदाहरण के साथ गिलहरी बताती है, जे हे महान पर्वत, मैं अगर आपके तरह बड़ा नहीं हूँ, तो आप भी मेरी जैसा छोटी सी एक गिलहरी नहीं बन सकते हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रेड, आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल गिलहरी ने दी। कहती है, उतना ही नहीं हे पर्वतराज, इतना ही नहीं, मेरा बराबर आधा भी आप करके दिखला लो। मैं जितना फुर्तीली हूँ, स्प्रे मीन्स बहुत फुर्तीली, यहाँ वहाँ फुदक फुदक के जाना, फुल ऑफ एनर्जी इसको कहता है। फुल एनर्जी के साथ क्या पर्वत कर सकता है? पर्वत तो हिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। जो अभी आपको भी बताएं, मैं बहुत बड़े जो होते हैं वो कोई काम नहीं कर सकता, सब काम उनसे नहीं हो सकता। गिलहरी बताती है, मेरा आधा काम करके दिखा दो। हाफ सो स्प्रे, मैं जितना फुर्तीला हूँ, मैं जितना एनर्जी से भरमार हूँ, मैं यहाँ वहाँ फुदक सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? नहीं। आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक
कहता है देखो मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। ए वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक। गिलोरी क्या करती है, पूरा पर्वत के इतना विशाल शरीर में होल बना दे सकती है, होल बना देती है। स्क्विरल ट्रैक, ट्रैक मीन्स यहाँ पर जो आप देखे होंगे चूहा, स्क्विरल, ये सब जो होल बनाता है, जो सुरंग बना लेता है, इसको कहा गया है। पर्वत इतना ही बड़ा हो लेकिन उसी का पूरा शरीर पर एक छोटी सी गिलहरी ट्रैक बना देती है, सुरंग बना देती है। अब कहता है टैलेंट्स डिफर। पोएम इज टेलिंग अस टैलेंट्स डिफर, all is well and wisely put. This line is not the single line, it has a great meaning. The reality of the society, reality of the life is hidden in this line. Children, you see, you should know about this line. Talents differ. डिफर स्पेलिंग देखो, DIFFER। डिफर मीन्स भिन्न भिन्न, अलग अलग। जैसे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, डिफर मीन्स भिन्न। अगर हम लोग इसको डिफर लिखे, DEFER, द मीनिंग विल बी टोटली डिफरेंट एज DEFER। डिफर मीन्स सम्मान करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, मान लेना, डिफर हो जाएगा, DEFER हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर DIFFER, डिफर, दैट इज़ भिन्न। ये मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह का वर्ड्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, इसके बारे में भी हम वीडियो में बताए हैं। आप लोग चैनल में सर्च करोगे तो देखोगे, सबसे पहले मैंने होमोनिम्स एंड होमोफोन्स के बारे में बताए हैं। देखो कहते हैं क्या, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर कोई, हर छोटे छोटे चीज़, हर चीज़ों को, हर टैलेंट्स को, हर भिन्न भिन्न कला को पृथ्वी में रखा गया है। इस पृथ्वी को केवल मात्र जो है एक ही तरह का, जीव से, जानवर से, मनुष्य से, पेड़ पौधा से सुसज्जित नहीं किया गया है। आप देखे होंगे, हम बगान में गुलाब भी देखते हैं और भी फूलों को देखते हैं, साथ साथ में बहुत सारा छोटे छोटे फूल भी देखते हैं। लाइक दैट, in this universe, in this world, different kinds of people, different kinds of animals, different kinds of insects are there, and all the creatures, they are made by the Almighty God. So the poet is telling here that talents differ, all is well and wisely put. बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत बुद्धिमानी से सभी को भगवान ने अलग अलग गुण देकर इस दुनिया में भेजे हैं। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक। अब देखो गिलोरी कहती है, फिर गिलोरी कहती है, अगर मैं इतना विशाल पर्वत को, इतना विशाल वन को, जंगल को अपना पीठ पर कैरी नहीं कर सकती हूँ, जैसे कि आपका माउंटेन में हम लोग देखते हैं बहुत वन जंगल ये सब होता है, लेकिन एक गिलोरी तो बेचारी बहुत छोटी है। गिलोरी कहती है मैं फॉरेस्ट को अपना पीठ पर कैरी नहीं कर सकती हूँ। ये बात सत्य है, ऐसा ही सत्य है जैसे कि आप भी एक छोटा सा अनाज को तोड़ नहीं सकते हो। Neither can you
क्रैक ए नट, एक नट को आप क्रैक नहीं कर सकते हो, एक तोड़ नहीं सकते हो। मतलब इस पोएम में काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई। एंड आई होप दैट द यू चिल्ड्रेन who are listening my video and watching the things, you very easily understand all the scenario, the theme of the poem, the summary of the poem, and you can easily solve the questions and the other exercises of the poem. Goodbye.